Good morning, students. So today we will be doing an assignment of sentence types, means what are the different types of sentences. Specifically, we will focus on simple sentences, compound sentences, and complex sentences. And then we will be solving some of the sentences of direct indirect speech, and then we will go towards that topic active passive voice. We will follow both the thing from direct to indirect, from indirect to direct, as well as from active to passive, and maybe from passive to active, that we'll see. Okay, so let's start from the topic sentence types. Like here some sentences are given and we have to find out which category of sentence it is. It is simple, complex, or compound. So simple sentence with one subject, simple sentence with combination of more than 2 or 3 sentences is compound sentence. एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस सेंटेंस में एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट होता है. अगर तुम दिल्ली जाओगे तो मेरे लिए शर्ट लेकर आना. नाउ शर्ट को लाने वाला जो एक्ट है, जो पार्ट है सेंटेंस में, वो इस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंडेबल क्लॉज है किसके ऊपर, कि अगर तुम दिल्ली जाओगे. सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वेयर वी हैव अ dependable clause where one part of the sentence is depending on the other part of the sentence, that basically falls in the category of complex sentences. Combination of many sentences, two sentences, it's a compound, but more than 2 अगर हो जाए, 3 हो जाए sentences जिनको जोड़ दिया, तो then also it becomes compound complex sentences. Getting my point? So like first sentence, the dog ran after the red ball. It's a very simple sentence with one subject, one verb, one object over there. So when these kind of sentences are there where there is one subject, one verb, so that falls in the category of simple sentence. So the dog ran after the red ball is a simple sentence. Now here we can see in the second sentence, the winter set in, it was cold and we took out woolen clothes from the cupboards. अब आप देखिए, पहला सेंटेंस था the winter set in, दूसरा सेंटेंस था it was very cold, और तीसरा सेंटेंस था we took out woolen clothes from the cupboards. तीनों को कंबाइन किया गया, the winter set in, it was cold, and लगाकर जोड़ दिया गया उसे, एक कंजक्शन लगाकर, we took out woolen clothes from the cupboard. So compound sentence. When 2 or 3 sentences are added and more than 3 हो जाए और ज़्यादा clauses का, ज़्यादा conjunctions का ज़्यादा use हो जाए, then that becomes compound plus complex sentence. Otherwise simple dependable sentence आ रहा है, simple ऐसा sentence आ रहा है जिसमें एक sentence दूसरे clause के ऊपर depend करता है, तो वो complex की category में आएगा. But complex तब भी jump कर जाता है जब compound sentence में भी काफ़ी सारे sentences की adding हो जाए, तो then that becomes compound complex sentence. The thief ran away when he saw the police. अब आप देखिए, thief ran away, there is a dependable clause की when he saw the police, जब उसने पुलिस को देखा. तो when he saw the police, then he ran away. अगर पुलिस को नहीं देखता तो वो नहीं भागता. तो which category of sentence it is? Complex sentence. She is neither honest nor sincere. Simple, one subject. We are talking about one subject, positive sentence. Oh sorry, she is neither honest nor sincere. Sorry. यहाँ पे 2 sentences थे जिनको जोड़ दिया गया. First sentence, she is not honest, full stop. Second sentence, she is not sincere. So अब दोनों sentences को जोड़ने के लिए हमने जो conjunction use किया वो neither nor वाला use किया, कि neither nor जब एक ही बंदे के बारे में 2 बात हो रही हो, about one subject we are talking about, we are giving 2 statements, then we combine those 2 statements using either or neither nor.
अगर हमें पॉजिटिव बात करनी है तो हम ईदर और का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें नेगेटिव बात करनी है तो हम नीदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम नेगेटिव बात करें कि ना तो वो ऑनेस्ट है और ना ही सिंसियर है, तो शी इज नीदर ऑनेस्ट नॉर सिंसियर। ओके, सो इट इज कंपाउंड सेंटेंस व्हेन टू सेंटेंसेस आर जॉइंड टुगेदर। Although it was raining, comma, I left my house, comma, as I had to attend an important meeting. Now, अब आप देखिए यहाँ पर दो तरीके के जो कंजक्शंस हैं वो यूज हो गई हैं। इधर से आपका although यूज हुआ, उधर as यूज हुआ। Here you can see the use of although, here you can see the uses of as. सो अब मोर देन टू कंजक्शन यूज हो गए, टू कंजक्शन यूज हो गए, तो ऐसे में ये कंपाउंड तो बन गया बिकॉज तीन सेंटेंसेस हैं। इट वॉज रेनिंग, फुल स्टॉप, आई लेफ्ट माई हाउस, फुल स्टॉप, आई हैड टू अटेंड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। तीन सेंटेंसेस जोड़े गए हैं, ठीक है, कंपाउंड। तो कैटेगरी कौन सी हो गई? कंपाउंड। बट दो क्लॉजेस यूज हो गए, ऑल्दो एंड एज, तो ये साथ में कम्प्लेक्स भी बन गया। सो सेंटेंस कैटेगरी इज कंपाउंड कम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? Next one is since we had only one plate, clause, dependable clause. Since we had only one plate, चूंकि हमारे पास सिर्फ एक प्लेट थी, we had to take turns to eat our dinner. हमें डिनर करने के लिए टर्न वाइज टर्न वेट करना पड़ा और टर्न लेनी पड़ी। तो अब डिनर करने के लिए टर्न लेनी पड़ी, क्यों? डिपेंडेबल क्लॉज, बिकॉज हम डिपेंड कर रहे थे इस क्लॉज पर, बिकॉज वी हैड ओनली वन प्लेट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेट थी। सो जब डिपेंडेबल क्लॉज आ जाता है, सेंटेंस की कैटेगरी होती है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम एंड केक। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, कहीं कुछ भी, इसमें दो सेंटेंसेस या दो सब्जेक्ट्स नहीं है, सो इट इज सिंपल कैटेगरी। नेक्स्ट, द वर्कर हैव डन देयर जॉब, फुल स्टॉप, as promised. Okay, so we should give them credit, full stop, we should pay them accordingly. तीन sentences थे। The workers have done their job as promised, पहला sentence, we should give them credit, दूसरा sentence, pay them, we should pay them accordingly, तीसरा sentence। तीनों sentences को जोड़ा गया है तो compound category में आ गया। more than two sentence हो गए तो compound बन गया। साथ में अब आप देखिए दो क्लॉजेस, नंबर वन, दो कंजक्शन, सॉरी, सो एंड इधर यूज हुआ एंड। सो जब दो क्लॉजेस हो गए, दो कंजक्शंस का इस्तेमाल हो गया, तो ऐसे में जो है वो कंपाउंड के साथ साथ कौन सी कैटेगरी बन गई? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? ओके। When the chief guest arrived, the audience clapped heavily. Now you know this sentence कि why is this sentence put in the category of complex sentence? Why? Because audience ने clap कब करी? जब chief guest आए। Dependable clause, अगर chief guest नहीं आते तो audience clap नहीं करती। So the clapping of audience is depending on the arrival of the chief guest. So dependable clause है, इसलिए complex sentence। So complex की category I hope अब आपको clear हो रही है कि जब दो category में complex आ जाता है, जब मोर देन टू कंजक्शंस यूज हो रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, जैसे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में बन रहे हैं। मोर देन टू अगर सेंटेंस कंजक्शंस यूज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है सेंटेंस बहुत बड़ा होगा। सेंटेंस बड़ा होगा तो कंपाउंड तो ऑटोमेटिकली बन गया, साथ में दो कंजक्शंस यूज हो गई तो वो बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स का सिंपल रूल है, डिपेंडेबल क्लॉज है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। The boys are playing cards, simple sentence. She wears as helmet when she wears a helmet. This is not as, यहाँ पर a है, ये इसे a माने। She wears a helmet whenever she is driving, but the pillion rider is without helmet. अब यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, जब भी वो ड्राइव करती है हेलमेट पहनती है। फर्स्ट सेकंड सेंटेंस है पिलियन राइडर जो है इज विदाउट हेलमेट। अब दोनों को जोड़ दिया एक क्लॉज के साथ, एक कंजक्शन के साथ, दैट इज कॉल्ड बट। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसी में एक सेंटेंस और ऐड हो जाता, एक कंजक्शन और ऐड हो जाता, तो ये बन जाता कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आफ्टर द हरिकेन हिट, हरिकेन के आने के बाद द सिटी वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड।
क्या हरिकेन के आने से पहले शहर बर्बाद था? नहीं था। शहर बर्बाद हुआ किसके आने के बाद? हरिकेन के आने के बाद। सिटी का कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होना किस पर डिपेंड हुआ? हरिकेन के ऊपर। हरिकेन क्या होता है? टाइफून, अ टेम्पेस्ट, तूफान, वो जो बवंडर बनकर जो तूफान आता है, दैट इज कॉल्ड अ हरिकेन. So after the hurricane hit, the city was completely destroyed. So dependable clause आ गया, complex sentence. There's a dependable clause, so that is complex sentence. The category is complex sentence. Tina arrived late for party. One subject. Tina arrived late for party. कोई दूसरी बात ही नहीं हुई. Simple sentence. Next. Even though he was tired, full stop. Sam knew he had to win the race, full stop. He ran as fast as he could, full stop. 3 sentences. Sam थका हुआ था. Sam was tired. Sentence की कैटेगरी क्या थी? Sentence ऐसे थे, ये मैं बता रहा हूं. Sam was tired, full stop. He knew he had to win the race, full stop. He ran as fast as he could. फुल स्टॉप. तीनों को जोड़ा गया है. ठीक है. दो इसमें कंजक्शंस का यूज हुआ है. ठीक है. इवन दो और इधर सो. ठीक है. 2 कंजक्शंस कौन कौन सी हैं? यहां पर यूज हो रहा है इवन दो, यहां यूज हो रहा है सो. कौन सी कैटेगरी हो गई? मोर देन 2 sentences, कंपाउंड सेंटेंस, एंड एट द सेम टाइम 2 कंजक्शंस, so it is कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो मेंटली याद रखना, 3-4 सेंटेंसेस का कोई कॉम्बिनेशन है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में मोस्टली जाएगा. मोस्टली इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. द चिल्ड्रन रैन अप द हिल टू द चर्च. वेरी सिंपल सेंटेंस, कहीं कोई मसले वाली बात नहीं है. पहाड़ से चर्च तक गए. नेक्स्ट वन इज Ramya took the train. Ramya and Sweta took the train to Lucknow. Simple sentence. Why? Because इसमें कोई ऐसा अलग अलग दोनों की बात नहीं हुई है और 2 अलग अलग बात नहीं हुई है. अदरवाइज अगर राम्या और श्वेता की 2 अलग अलग बातें होती तो हम राम्या और श्वेता को जोड़ते. ठीक है. बट दोनों ने एक ही काम किया. राम्या एंड श्वेता took the train to Lucknow. Simple sentence. Harish waited for the bus but the bus was late. 2 sentences जोड़ दिए गए. कंपाउंड. इसी में एक और जुड़ जाता. एक क्लॉज तो आ गया, बट कंजक्शन जो आया एक वो बट आया. दूसरा एक और कंजक्शन ऐड हो जाता तो ये कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स हो जाता. बट फिलहाल सिंपल सी बात है. हरीश ने बस की वेट करी लेकिन बस लेट थी. सो हरीश वेटेड फॉर द बस, फुल स्टॉप. द बस वाज लेट, फुल स्टॉप. दोनों को जोड़ा कॉमा लगाकर, बट लगाकर. सो कंपाउंड सेंटेंस. सोनिया लाइक्स कॉफी, मारिया लाइक्स टी. अब 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं. आ गई ना बात. दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, एंड लगाकर जोड़ा है तो अब ये कंपाउंड में आ गया. तो सोनिया लाइक्स कॉफी एंड मारिया लाइक्स टी. 2 sentences have been combined. Compound. Yash ran fast but he could not catch the thief. Yash ran fast, full stop. He could not catch the thief. 2 sentences जोड़ दिए बट लगाकर. कंपाउंड. After Ramesh ate the entire cake, he got a stomach ache. I don't think so कि अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत है बेटा जी. उसको स्टमक एक कब आया? जब उसने पूरा केक खा लिया. तो डिपेंडेबल क्लॉज आ गया. When Ramesh ate the entire cake, then he got a stomach ache. So dependable clause है. That's why यहां पर complex category है ये वाली.